Hello, dear students. In last class, we have discussed trigonometry related conversion of an angle degree to radian or radian to degree. And now, today in that class, we will discuss some of the questions of the exercise 3.1. Question number 3. A wheel makes 360 revolution in 1 minute. क्वेश्चन नंबर 3 वी विल डिस्कस एक व्हील है दैट मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 minute, right? How many radian does it turn in 1 second? How many radian does it turn in 1 second? This is the question, right? अब देखो ये व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 minute. Then how many radian does it turn in 1 second? स्टूडेंट्स यहाँ का व्हील ने कितने रिवोल्यूशन करे? 360. कितने मिनट में? 1 minute में. In 1 minute, the number of revolution is equivalent to the 360. The 1 minute is converted into second, then it will return 60 second. The number of revolution is equivalent to the 360 in 1 second. Then the how many revolution? That is equivalent to the 360 divided by, then the 6th revolution will be in 1 second. यहाँ तक क्लियर हो गया? Now the question is how many radian does it turn in 1 second? So one revolution is equivalent to the form angle which is equivalent to the 360 degree, or we can say 2 pi radian, right? In 1 second 6 revolution. In 6 revolution the angle form which is equivalent to the 2 pi into 6 radian, it means 12 pi radian. The question is completed, right? First, now the question 2. Find the degree measure of angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. Next question is there. तो हमने एक फॉर्मूला और स्टडी नहीं किया, दैट वी विल डिस्कस नाउ. An angle which is equivalent to the length of an arc divided by radius of a circle. Suppose there is a circle and the length of an arc. Suppose an object which is here, from here it makes some angle which is theta, and the length of an arc that is covered by A to A dash, that is length of an arc. It subtend an angle at origin, that is theta. This length of an arc subtend angle at the center of circle which is equivalent to the theta. So this theta is calculated by the formula of length of an arc equal length of an arc divided by radius of circle angle. This angle is to be, or we can say angle, unit of this angle is length of an arc. Suppose it is in meter,
then the radius of circle, that is also in meter or centimeter, so the unit will be cancelled to each other. So we can say angle is unitless. एंगल क्या होगा? यूनिटलेस. अगर इसको आपको डायमेंशनल फॉर्मूले में शो करना हो तो इसकी एंगल की यूनिट क्या आएगी? यूनिटलेस, राइट. और मीजर किस में किया जाता है? डिग्री और रेडियन में. एंगल को मीजर किस में किया जाएगा? इन फॉर्म ऑफ डिग्री और रेडियन, और रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन. वी नो दैट 180 degree equal pi radian, by which we will change any one degree to radian or radian to degree. Now we shall come on the question number 4. Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle. डिग्री मीजर बताना आपको. ये थीटा क्या है? डिग्री मीजर बताना है. एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल दैट इज गिवन 100 सेंटीमीटर. And the length of an arc that is given 22 centimeter. It is given 22 centimeter. तो एंगल कितना हो गया? थीटा. दैट इज ऑलवेज इन रेडियन. ये जो थीटा कैलकुलेट हो रहा है इट इज इन रेडियन. नाउ वी शैल राइट लेंथ ऑफ एन आर्क दैट इज 22 सेंटीमीटर ओवर रेडियस ऑफ सर्किल 100 सेंटीमीटर. कैंसिल करें 1150, और अभी ये आ गया 11/50 रेडियन इक्वलेंट टू द थीटा. हमें किस में पूछा गया? डिग्री पूछा गया. सो रेडियन कन्वर्ट इनटू डिग्री. वी नो दैट पाई ऑफ द रेडियन इक्वल 180 डिग्री, राइट. 1 ऑफ द रेडियन इक्वल 180 डिग्री ओवर पाई. यही लिखते हो. और पाई को क्या लिख देते हो? 22/7. This is the degree. Now we shall theta equal 11/50 into, यहाँ लिखोगे आप 180 into 7/22. This is 2, 0 cancel by this is 9, तो हो गया 63/5 डिग्री. और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 5 बन जा, then 2 ja 3/5 degree is the answer. This question, now this is the answer. Now this is the fourth question of 3.1. So solve like that. Is there any problem? I think, is it clear? Question number 3. Question number 4, 12 degree, and this is the, in convert in the dash, then प्रॉपरली यू कैन कैलकुलेट नेक्स्ट वैल्यू ऑफ डैश, राइट. अगर इसको आप डिग्री डैश में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना हो गया? 12 डिग्री प्लस 3 इंटू 60 डैश डिवाइडेड बाई 5 एंड 5 कंप्लीटेड बाई 12. सो वी कैन से 12 डिग्री 36 डैश. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट. नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. तो एंगल ऑफ ए that is equivalent to the length of an arc divided by radius of a circle. क्लियर है? डायमेंशनलेस, और जो एंगल मेजर किया है वो रेडियन में है. सो इफ द क्वेश्चन इज स्टेट दैट कन्वर्ट इट इज इन द रेडियन और मेजर द रेडियन एंगल. इन केस यू विल टेक दिस इज इन द बाय द फॉर्मूला 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन. Now next question is, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of the chord is 20 centimeter. एक सर्किल है, उसका डायमीटर कह रहे हैं 40 सेंटीमीटर. दिस इज द सेंटर. टोटल डायमीटर इज 40, it is given, right. Then the radius of this circle is 20 centimeter. Clear है? Next, the length of the chord is 20 centimeter. Chord join to, एक कोड कंसिडर कर लिया आपने. सपोज दिस इज द कोड एंड द लेंथ ऑफ दिस कोड इज आल्सो 20 सेंटीमीटर. कितनी है? ये आपने कोड कंसिडर कर ली, और इस कोड की लेंथ भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर. और ये कितनी है? रेडियस है, दैट इज अगेन 20 सेंटीमीटर. दिस लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड. इस कोड की जो माइनर आर्क है वो कौन है? ये वाली. दिस इज द माइनर आर्क ऑफ कोड, राइट.
and the rest arc, this is the major arc of the chord. Minor arc of the chord is only this and the major arc is this. तो माइनर आर्क ऑफ द कोड की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है और लेंथ ऑफ एन आर्क इज डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्किल इज इक्वलेंट टू द एंगल. तो एंगल पता नहीं है पर द ट्राइंगल विच इज फॉर्म बाय द ओ ए बी विच इज equilateral triangle because all side that's length that is equivalent to the 20 20. So this is equilateral triangle, so the angle formed by that is a 60 degree or we can say pi upon 3 radian, right? In equilateral triangle each angle is pi upon 3. Now the length of an arc formula, angle in radian equal length of an arc divide radius of a circle. तो length of an arc angle is 60 degree or we can say pi upon 3 radian. Length of an arc that we have calculate, इस minor arc की length आपको calculate करनी है तो वो कितनी हुई माइनर आर्क की लेंथ दैट इज सपोज ये लेट कर लिया आपने विच इज इक्वल टू द एक्स लेट करी तो एक्स ओवर रेडियस दैट इज 20. तो आंसर इज 20 पाई ओवर 3 इज द लेंथ ऑफ एन आर्क. क्लियर सबको? नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. If in two circle arc of the same length subtend angle 60 75 at the center, find the ratio of their radius. Right? क्या दिया गया है? Two circles. Number one, what is given? Two circle is given, and the second part is given that the arcs of the same length means हम दो सर्किल ड्रॉ कर देते हैं. We draw the two circle first. The condition is given, there is circle 1, there is circle 2 और ये दोनों में सेंटर आपने डिस्क्राइब कर दिया, ये रेडियस. इनका आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एन एंगल. सपोज आर्क की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ, सपोज ये एल लेंथ कंसीडर कर लिया आपने, इसने सेंटर पे सबटेंड किया एंगल दैट इज इन द वन ऑफ द सर्किल दैट इज द 60 डिग्री 60 डिग्री एंड द सेम लेंथ एज मच वी हैव कंसीडर. सपोज दिस इज अगेन एल, दिस सबटेंड एन एंगल एट दिस सर्किल दैट इज 75 डिग्री सपोज. राइट? क्लियर है सबको? लेंथ इज सेम, द एंगल फॉर्म बाय द arc that is different in both the cases. In first the angle subtend that is 60 degree, in second subtended angle is suppose 75 degree. Right? Now the L is same. Now the ratio of the radius we have calculated there. So from the circle formula that is written here, length of an arc divided by radius of circle. The angle subtended that is theta. In degree convert in radian. 75 degree equals 75 into pi over 180. तो कैंसिल करते हो 15 5 जा 15 3 जा 6 जा 3 1 जा 2 जा 3 5 जा. तो ये कितना हो गया 5 पाई ओवर 12 रेडियन. नेक्स्ट में 60 डिग्री विच इज इक्वल टू द पाई बाई 3 रेडियन. Now the formula is there. Angle is कितना है? पहला केस अप्लाई करेंगे 5 पाई बाई 12 into radius of circle is we don't know, so we would like to calculate r1 equal length of circle is same L. In case of second radius is suppose this is the r1, in case of 75 degree r1 and it is known as R2. We would like to calculate the ratio of R1 to R2.
Now angle is 5 by 3 into radius equivalent length. In both the cases the length of the arc that is same. So L equal L from first to 2. Now we shall write pi by 3 into R2 equal 5 pi by 12 into R1. We calculate the R1 ratio R2. So now R1 over R2 equal, here is pi by 3, here is 5 pi by 12. Now we shall write again pi into 12, 3 into 5 pi. Pi cancel, 3, 4 cancel. So the ratio of the radius that is equivalent to the 4 over 5, or we can say 4:5 is the answer of this question. ये सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा? सो दैट इज 4:5. और अगर 60 डिग्री 75 डिग्री, हमने 75 डिग्री वाले को फर्स्ट कंसिडर किया है, अब 60 डिग्री को फर्स्ट कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5:4. क्लियर है सबको? नाउ कम ऑन, लास्ट क्वेश्चन इज सिंपल. नाउ वी शैल कम ऑन सम आइडेंटिटीज. You just all students solve this question in their notebook with a proper explanation. Now we will move into our next part, that is trigonometric identities. In last work we will discuss sin A plus B, sin A minus B, cos A plus B, cos A minus B. In last we have discussed these identities. Today we will discuss some another identities. One of the identity that we have already discussed, sin x plus y, sin x cos y, और एक sin x minus y भी की थी हमने. फिर दोनों को ऐड किया था, एक नई आइडेंटिटी बनाई थी. सेम इन केस ऑफ cos, you can calculate similarly cos A plus B, that is equivalent to the cos A cos B minus sin A और sin B, राइट है. अब यहाँ से आपको एक आइडेंटिटी कैलकुलेट करनी है कि A इज रिप्लेस्ड बाई x एंड B इज आल्सो रिप्लेस्ड बाई x. तो ये क्या नई आइडेंटिटी बन गई? cos 2x इक्वल cos x into cos x minus sin x into sin x, or next we can write cos square x minus of sin square x. We know that cos square x plus sin square x equal 1, from where we can calculate sin square x equal 1 minus cos square x, or we can calculate cos square x equal 1 minus sin square x. Both these identities we will substitute into our this identity. Now we shall get cos 2x, which is equivalent to the cos square x minus of 1 minus cos square x. Now we will get the identity that is cos square x minus 1 plus cos square x, or we can write 2 cos square x minus of 1, which is equivalent to the cos 2x. This is an identity. Similarly यहाँ हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रिप्लेस किया था, यहाँ हम कॉस स्क्वायर एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं. नेक्स्ट आइडेंटिटी हम फिर बनाते हैं यहाँ पे कि cos 2x विच इज इक्वलेंट टू द 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और फिर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. तो जो न्यू आइडेंटिटी बन गई वो बन गई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल cos 2x. दैट इज द न्यू आइडेंटिटी. तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपरली समझ लें कि हमने cos A प्लस B लर्न किया. तो सिमिलरली यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स whenever A and B both of them are substituted by x. तो रिजल्ट जो आपको मिला वो क्या मिला? इस तरीके से जो आपके सामने है वो रिजल्ट आपको मिलता है. तो गाइस ये प्रॉपरली ध्यान रखना है कि हमें cos A प्लस B से ये रिजल्ट मिला.
ए माइनस बी की आइडेंटिटी भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही आपने साइन ए प्लस बी किया था, वहाँ भी ए को एक्स से बी को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो दो नई आइडेंटिटी को साइन 2x की आ जाएगी आपके पास। ठीक है, सबको क्लियर है आइडेंटिटी। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो क्या लिखोगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब हम क्या करते हैं, एक नई आइडेंटिटी बनाते हैं। आपको ए प्लस बी को सी लेट करना है, ए माइनस बी को डी लेट करना है। दो आइडेंटिटी वहाँ से डेवलप करेंगे, और दो आइडेंटिटी हम लोग अब नई बना रहे हैं, वो प्लस की आप करेंगे, सब्ट्रैक्शन प्लस से आइडेंटिटी बनाना। वी जस्ट प्रोडक्ट दैम 1 and 2। हम क्या कर रहे हैं, 1 and 2 का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। ठीक है, तो क्या आ गया देखो, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल, प्रोडक्ट करोगे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, फिर प्लस कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी माइनस sin square a sin square b. This term cancel by this term. The result we are getting, that is cos square a cos square b minus of sin square a sin square b, which is equivalent to the cos a plus b into cos a minus b। ये आपका एक रिजल्ट आ गया कि कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। सबको क्लियर हो गया? तो ये प्रॉपरली आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आप प्रोडक्ट में एक रिजल्ट बना सकते हो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, सबको क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी पे हम बात करते हैं, 10x प्लस वाई। अब हमने साइन ए प्लस बी भी स्टडी किया, कोस ए प्लस बी भी स्टडी किया है, तो दोनों रिजल्ट्स को यहाँ लिख लो। साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। डाउन साइड we just write cos a plus b equal cos a cos b, here is plus minus sin a sin b। क्लियर? हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट में राइट का राइट में। नाउ इज दिस लेफ्ट इज रिटर्न tan a plus b which is equivalent to the, in the right side we will divide by cos a cos b to the numerator, divide cos a cos b to numerator and denominator। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। डिवाइड करेंगे आप कॉस ए और cos b का अपॉन सेम कंसेप्ट अप्लाइड देयर, cos a cos b माइनस साइन a साइन b डिवाइड cos a cos b। नाउ डिवीजन स्टार्ट करेंगे, इंडिविजुअल डिवीजन करना है, इस टर्म का इस टर्म में, इस टर्म का इस टर्म में। अगेन दिस टर्म इज डिवाइडेड टू दिस टर्म एज वेल एज दिस टर्म। नाउ डिवाइड हेयर, साइन ए कॉस बी डिवाइडेड कॉस ए कॉस बी प्लस हेयर इज कॉस ए साइन बी डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी ओवर cos a cos b अपॉन cos
cos b minus sin a sin b over cos a cos b. Now if any term cancel then cancel it, cos a cos b cos a, ठीक है। यहाँ पर सिंगल टाइम कट रहा है और यहाँ कुछ नहीं कट रहा, तो रिजल्ट क्या आ गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इधर क्या रिजल्ट आ गया, tan a प्लस b। तो स्टूडेंट्स दिस इज द आइडेंटिटी for tan ब्रैकेट a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर आपको tan a माइनस b कैलकुलेट करना है तो here is minus, here is minus, there is plus, this is the tan a माइनस b। इसी से आप कोट कन्वर्जन कर सकते हैं, 1 अपॉन कर लेंगे तो कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट साइड सारा कोट में 1 अपॉन कन्वर्ट करके एलसीएम ले लेंगे तो कोट की आइडेंटिटी आ जाएगी। तो हमें tan a प्लस बी tan a माइनस बी बोथ आइडेंटिटी इज क्लियर, हाउ इट कैन बी ड्रॉन लाइक दैट। तो स्टूडेंट्स अब आपको डिफरेंट आइडेंटिटीज जो हम डे बाय डे प्रैक्टिस में कर रहे हैं, यूजर्स सॉल्व प्रॉपर इन योर कॉपीज एंड द एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारा कोट एक्स प्लस वाई कोट एक्स माइनस वाई अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो हमने कोट एक्स में क्या करना है आपको, सपोज tan a प्लस बी की हम एक आइडेंटिटी लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। cot a प्लस बी, cot a प्लस बी, तो देखो अभी आपने लिखा था tan a प्लस बी इक्वल tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब हम लिख रहे हैं cot a प्लस b, तो क्या होगा, अब पहले हमें उसको tan में कन्वर्ट करना है, कैलकुलेट करना है cot a प्लस b, तो ठीक है। तो कन्वर्जन करेंगे तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन tan का 1 अपॉन tan cot होता है, राइट है। हमने क्या किया, इसको लिखा 1 अपॉन cot a प्लस बी, लिख सकते हैं ना इसको, क्या दिक्कत है। इधर भी हम क्या लिख रहे हैं, 1 अपॉन cot a प्लस 1 अपॉन cot b ओवर 1 माइनस 1 अपॉन cot a इंटू 1 अपॉन cot b। अब राइट साइड हम एलसीएम लेते हैं तो अपने पास क्या आता है, cot a cot b और यहाँ आता है cot b प्लस cot a। डाउन साइड अपने पास आता है cot a cot b माइनस 1 ओवर cot a cot b, ये कैंसिल हो जाता है। और हम रिजल्ट का रेसिप्रोकल करते हैं, क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, देन वी आर गेटिंग द रिजल्ट दैट इज cot a प्लस b विच इज इक्वलेंट टू द cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ये हमने cot a प्लस b का रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो था वो दैट वी हैव ड्रॉन हेयर, cot b प्लस cot a लिख लें तो एक ही बात है, cot b प्लस cot a। यहाँ b लिख लें तो आपको क्या है कि अगली जो माइनस की आइडेंटिटी बनाते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइनस में क्या होगा, माइनस के केस में ये यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, दैट इज इन केस ऑफ माइनस। अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ cot a माइनस b। तो गाइस ये प्रॉपरली आपको आइडेंटिटी ध्यान रखनी है। कुछ आइडेंटिटीज और हैं जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पूरी कर लेंगे, ठीक है। प्रॉपरली आइडेंटिटीज को आपको ड्राइव करना है और राइट करते जाना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इन आइडेंटिटीज़ की उतनी ही आइडेंटिटीज आपको परफेक्ट आएंगी। तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस यू विल गेट, बी कंफर्टेबल, बी prompt on the identities. So first all of you be regularly doing the practice of these identities and solve them, right? For exercise 3.3 you can start in a regular way. Okay, thank you very much.